Assalamu alaikum. My name is Zulfiqar Shaikh, and I'm going to give you an overview about the GRE Quant section. So welcome aboard through these new methods that we are currently getting ourselves familiarized with different times. So yes, we will be covering some key aspects about the Quant section, which will be very helpful to you in getting to know different aspects, which usually remain confusing at times, but it's also good to be geared up with good available information. So let me just share the PowerPoint presentation through which we will be covering today's session. Okay, so in this session, we are going to cover quite a few aspects about the test, about what the test actually assesses, what are the scoring options, percentiles, section level adaptability, test formats, scores and options that you will have on the test day, question types, and different concepts that you will be using in the Quant section, and books and other resources and test materials that you can use, some common gap areas that we often encounter with numerous students that I have worked with, and how should you plan about preparing your GRE preparation for the Quant section. Okay. So first of all, graduate record examination, the GRE, it's a standardized test, and its scores are used by universities and fellowship institutions for admissions, awards, and comparison purposes, along with other criteria, of course. These are mostly used in USA and Canada, but many other institutions around the world are increasingly not only accepting it, but in some cases they are requiring these tests. And I can assure you these are very, very well-designed courses, tests, which can actually assesses the relevant skills which are required for the purpose it has been designed for. And GRE is conducted by Educational Testing Service. It's an American testing agency, but it has highly qualified standardized testing, and the most famous ones are GRE and the TOEFL. All of the information about GRE and the registration is also available at ets.org/GRE. This is where you actually register your tests, and also you get some materials available. Tests bante kyun hai? Tests are designed to measure some skills, and let me just try to. Yeah. Tests are designed to give you a fair, valid, and reliable assessment of the knowledge and the skills that you want to be tested upon, and you want to give someone assurance. So admission committees use these tests for different purposes, but at the same time, these are the tests, and the scoring of the tests are also used to compare different students and create barriers for entry, or it's a mechanism to control the entry. For example, someone wants to get into Harvard or UC Berkeley, and there are, of course, hundreds and thousands of candidates, but the seats available are very limited. So one of the criteria they use is your test scores. And that being said, at the same time, GRE actually assess karta kya hai? It tests those skills and abilities which are required for graduate level studies. Why is that so? Because aap yahan pe hundreds of students ke ek batch mein ja rahe honge. Professor has to follow certain pace. You have to do some assignments, readings, quick projects, a lot of those things. Can you pace up with the kind of work which is required there? तो आपकी जो वो assessment है कि आपके अंदर relevant skills हैं to process these things, verbal, quantitative, analytical, data processing. Can you do it in the relevant pace? And these are time bound tests, and this is exactly for the reason that you have to do certain assignments and the course coverage in a tight time duration. So are you prepared for that? There's a rigorous program in US universities and all over the world in the grad school universities that you
go to, and these tests are there to see if you have that ability. But the important thing is, does the test, whatever GRE or some other test, actually measures what it is meant for? So not all tests are that good enough. आपने बहुत से local tests देखे होंगे, they want to measure some particular aspect of your knowledge or skills, लेकिन वो tests properly design नहीं होते, या क्या चक्कर होता है इसमें, बहुत से फैक्टर्स रह जाते हैं. टाइम टेस्टिंग नहीं हुई होती उनकी, इसके अलावा आपके जो पैटर्न्स हैं, आपके डिफरेंट बैकग्राउंड से जो लोग आ रहे होते हैं, कि आर दे सिमिलरली प्रिपेयर्ड, उनके लिए रेलेवेंट है नहीं है, ऑल ऑफ दोस फैक्टर्स डू काउंट. सो इम्पॉर्टेंट ये चीज है कि टेस्ट वही चीज मेजर कर रहा है जो आप इंटेंड कर रहे हैं. सो GRE, I can assure you, is a very, very well designed course test which will assess the relevant skills. In the quant section specifically, we are talking about how to understand and process quantitative information, to interpret and analyze such information, and to solve problems and mathematical models to demonstrate overall quantitative reasoning skills. Can you reason with the data? Why is that important? In today's all-encompassing subject areas, you see that mathematical concepts are used. And you have to process those information, and you have to make judgments according to that. You have to visualize some of those. But at the same time, it's not just maths. It's higher level skills which are there to be tested. Can you analyze given information? Can you see how important it is? Can you assemble that with other information? And are you well prepared to do it in a time-bound manner? But at the same time, many aspects of those have to be very, very clear, that the test has been designed and structured in a way that only those skills and not any other aspects of it are tested, which of course also includes how good are you at managing your stress levels. That's also key. So all of those skills are tested using the concepts of mathematics. That is understandable. So you need to understand, and I'm very particular about that part, is that this is not at all a math section. It's a GRE quant section, which measures your quantitative skills. So please stop calling it math section in your understanding about what it is. So it uses math concepts, that's there, but it's testing higher level skills. And it is important to see that these skills may be your ability to reason, think quantitatively, solve problems, and available information. Can you process that information? Can you get hold of other variables that can be driven out of that? And this particular skill is not just useful for maths, it's useful for everyday life, and of course for the academics in particular. And can you use different methods to the same problem? And analyze the sufficiency of the data. Is the data available there? Is sufficient? Do you need more information on all of those parts? So before we further delve into this, know your coach. Me, I'm Zulfiqar Shaikh. I'm a undergrad in economics, and then I have gone on to the Fulbright scholarship, and I did my master's in international development from Cornell University. And I'm working in the development sector. I've worked with many INGOs. I've worked with UNICEF, and I am also working with the government sector in the education and youth development areas. And I'm also on and off doing coaching for different academic and non-academic stuff. So back to the GRE. What are the formats and scoring that you need to understand about the test? Good to jump in with that. What is with the scoring? You might have heard already that the minimum score in the GRE is 130 and the maximum is 170. So in that broad spectrum that you have, you're dealing with 130 and 170. So you cannot boast to your parents and siblings that, okay, you went to this test and not without too much of a preparation, and the test is considered really tough, but still you managed 130 out of 170. That's absolute zero. Yeah, that's absolute zero. So why is the 130 a minimum score? We must understand what's going on. So for example, in a test of 0 to 100, many students attempt that. An increase from score 1 to 2 is 1 point increment.
that is 100% increment because एक नंबर पे आपने एक और नंबर ऐड किया, so that's 100% increment. From 25 to 26 for example, it's a 1 point increment again, लेकिन on the basis of 25 points, so that's a 4% jump. So आप देख रहे हैं कि 1 to 2 में आपको 100% जंप मिल रहा है, 2 to 3 में फॉर एग्जांपल आपको 50% जंप मिल रहा है, बिकॉज 2 का 50% 1 बनता है, 2 से 3 में आपने 1 पॉइंट इंक्रीमेंट लिया, लेकिन दैट्स अ 50%. 25 से 26 जाते हुए 4% रह जाता है, एंड मोर सो ऑन फ्रॉम 98 to 99 फॉर एग्जांपल, इट्स 1.02% इंक्रीज. That increment is changing. So we are saying that 1 point increment has different significance at different levels. जबकि हम ये कह रहे हैं, और पहली बात हम ये कह रहे हैं कि अगर आप ये भी देखें कि अगर आप टेस्ट को कहते हैं कि that's a very well designed test, that means कि अगर आपका स्कोर 0 है और वो चीज जो टेस्ट कर रही है उसमें अगर आपका स्कोर 0 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि you don't know anything about that subject. And if the test is good, that should be the right statement. It means कि आपको कुछ भी नहीं आता. अगर आप multiple improvements भी ले लें तो आपको नहीं आता, मतलब उसी स्कोर को आप मल्टीप्लाई करते हैं. लेकिन जैसे ही आप 1 पे पहुंचते हैं, जैसे an infinity increase, उसके बाद से आपका प्रोसेस स्टार्ट होता है. फिर आप 1 से 2 पे जाते हैं, दैट्स मेजर जंप. अगर एक स्टूडेंट है जिसने स्कोर 1 लिया और आपने दूसरे स्टूडेंट ने स्कोर 2 लिया, सो 1 और 2 अगर ये ट्रू रिफ्लेक्टर्स हैं आपकी उस स्किल के या नॉलेज सेट के, तो दैट वुड मीन कि जिसको 1 आता है आप उससे 2 गुना ज्यादा इंफॉर्मेशन स्किल्स रखते हैं उस पर्टिकुलर चीज में. दैट इज समथिंग टू से. लेकिन 99 से 98 से 99 पे जाने पे आपकी वही परसेंटेज पॉइंट्स डिक्रीज हो जाते हैं, बिकॉज उसकी सिग्निफिकेंस डिक्रीज हो गई है. सो वी वांट टू शो दैट ऑलमोस्ट इक्वल सिग्निफिकेंस हो हर पॉइंट की. सो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव they have done statistical research on this and they say कि ठीक है, ऐसा तो हो कभी नहीं सकता कि हर पॉइंट इंक्रीमेंट की हर लेवल पे सेम सिग्निफिकेंट एग्जैक्टली और सेम सिग्निफिकेंट नहीं हो सकती. लेट्स से अगर आप 1000 के स्कोरिंग पे भी ले जाते हैं तो 995 से 996 में जो इंक्रीज आ रही है, दैट इज मोर सिग्निफिकेंट एज कंपेयर टू लेट्स से 999 से 1000 पे 1 पॉइंट इंक्रीमेंट है, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि ऑलमोस्ट इक्वल हो जाए. सो 130 was assessed to be a benchmark, जिसकी बेसिस पे हम ये कह रहे हैं कि 130 को एब्सोल्यूट 0 लिया जाए. उसके बाद हम ये कहेंगे कि 135 से 136 में जो 1 पॉइंट चेंज आ रही है, दैट इज ऑलमोस्ट द सेम एज 165 से 166 के ऊपर जो आपकी चेंज आ रही है, और परसेंटेज पॉइंट्स में बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट चेंज नहीं आ रही, तो आपका बैंड 40 पॉइंट्स का ही है. दैट इज वेरी की. और उसके ऊपर जो 1 पॉइंट इंक्रीमेंट है, ऑल ऑफ दोस पॉइंट्स आर कंसीडर्ड टू बी सिग्निफिकेंटली द सेम थिंग. Okay, so with minimum score 130 and the maximum score 170, there's only a 1 point increment. There's no partial answers or partial scoring. Even though हम question types में you will see there are those things कि आपको 2 options pick करनी थी या 3 pick करनी थी, आपने 2 ठीक pick की, एक गलत pick कर ली. No, there's no partial answer for that. आपके कोई partial credits नहीं बनते. अगर आपका score या तो 145 हो सकता है, या 146 हो सकता है, या 147 हो सकता है, 145.5 नहीं हो सकता. So that point is there. Scoring percentile. So assuming कि एक टेस्ट दिया जाता है और स्कोरिंग है between 0 and 10 और आपने नंबर लिए हैं 8 and you say कि you have done great. लेकिन 10 लोग थे क्लास में और 9 लोगों का जो स्कोर है वो या 9 है या 10 है. So you are the last person. So if you are the last person, the important thing is कि अगर टेस्ट को हम उस कॉन्टेक्स्ट में देखें कि ये एक एंट्री के मैकेनिज्म को भी कंट्रोल करने के लिए यूज होता है, तो अगर आप किसी जगह पे जाके कहें कि आपने 8 लिए हैं, तो that might not be very satisfying for them because बाकी सारे स्टूडेंट्स ने आपसे बेहतर परफॉर्म किया. तो आपकी जो इंपॉर्टेंट चीज है ये है कि आपने कितने परसेंट लोगों से बेहतर परफॉर्म किया. सो परसेंटाइल्स टेल्स यू दैट पार्ट. अगर आप 50th परसेंटाइल पे हैं तो इसका मतलब है कि आपने 50% लोगों से बेहतर. सो लेट्स से आपने स्कोर लिया 160 आउट ऑफ 170 और बहुत से और स्टूडेंट्स ने टेस्ट लिया था, हजारों स्टूडेंट्स टेस्ट लेते हैं, तो आप ये कह रहे हैं कि बाकी स्टूडेंट्स के मुकाबले में आप 50% लोगों से बेहतर है. तो चाहे आपका स्कोर 160 है, चाहे आपका स्कोर 150 है, चाहे आपका स्कोर 140, अगर आप 50th परसेंटाइल पे हैं तो इसका मतलब है आप 50% लोगों से बेहतर है. इसका मतलब 50% लोगों का स्कोर आपसे
नीचे का स्कोर। 97th परसेंटाइल फॉर एग्जांपल वुड मीन कि आपने 97% लोगों से बेहतर परफॉर्म किया, सो आप टॉप 3% लोगों में फॉल करते हैं। सो परसेंटाइल्स आर usually taken as more robust measure by the admission committees and the review boards and the fellowship institutions like USEFP, because these are relatively robust mechanisms. But again, test is just one component of it. फॉर्मेट ऑफ द टेस्ट ये होता है कि आप जब टेस्ट में जाते हैं तो एनालिटिकल राइटिंग के 2 सेक्शन आते हैं। उन 2 सेक्शंस के बाद आपके 5 सेक्शंस क्वांट और वर्बल में से आते हैं। उन 5 में से बिसाइड्स एनालिटिकल राइटिंग सेक्शन जब 5 आप देखते हैं तो 2 वर्बल के या 2 क्वांट के और 3 वर्बल के और 3 क्वांट के आते हैं। सो बेसिकली अगर 2 वर्बल के आते हैं तो 3 क्वांट के सेक्शन आते हैं, और अगर 2 क्वांट के सेक्शन आते हैं तो 3 वर्बल के सेक्शन आते हैं। टोटल 5 बनते हैं, उनमें से एक एक्सपेरिमेंटल होता है, एंड यू हैव नो वे ऑफ नोइंग कि उसमें एक्सपेरिमेंटल कौन सा है। और यही इंपॉर्टेंट चीज है। ये जीआरई के जो क्वेश्चंस हैं ये बहुत ज्यादा रिसर्च के बाद बनते हैं, और आप स्कोरिंग में भी जब मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से रॉ स्कोर्स को स्केलिंग स्कोर्स पे लेके जाया जाता है, तो इंपॉर्टेंट ये चीज होती है कि बाकी स्टूडेंट्स ने कैसा परफॉर्म किया। हो सकता है लैंग्वेज टफ हो सकता है और तरह की चीजें। तो ये सारी रिसर्च बेहतर तब हो सकती है जब आपको ये बताया जाए कि ये ओरिजिनल टेस्ट है, सैंपल या डमी नहीं है। एक्सपेरिमेंटल पर्पस से अगर मुझे कहा जाए एक्सपेरिमेंटल पर्पस से ये टेस्ट हो रहा है, आई माइट बी वेरी नॉन सीरियस अबाउट इट, और देयर इज नो हाई लेवल स्टेक्स इन्वॉल्व। अगर मेरे स्टेक्स इन्वॉल्व होंगे तो फिर मैं उसको सीरियस लूंगा। सो आपको ये पता नहीं चलता कि वो जो एक्स्ट्रा सेक्शन आया है, चाहे तो क्वांट का एक सेक्शन एक्स्ट्रा आ जाता है या वर्बल का एक सेक्शन एक्स्ट्रा आता है। अगर पहले क्वांट का है तो अगला वर्बल का आता है, फिर क्वांट का आता है, फिर वर्बल का आता है, फिर क्वांट का आता है। इसका मतलब क्वांट का एक सेक्शन एक्सपेरिमेंटल है, लेकिन लास्ट सेक्शन एक्सपेरिमेंटल है ये आप नहीं बता सकते। हो सकता है पहला एक्सपेरिमेंटल, हो सकता है दूसरा एक्सपेरिमेंटल, हो सकता है तीसरा ही हो। तो आपको तीनों को सेम सीरियसनेस के साथ अटेम्प्ट करना पड़ता है। ड्यूरेशन ऑफ द जो क्वांट सेक्शंस हैं वो ये है कि 35 मिनट्स का हर सेक्शन होता है और 2 सेक्शंस होते हैं। टेस्ट वाले दिन जब आप जाते हैं तो आपके पास स्कोर्स आते हैं। अगर आपने 2 महीने पहले भी टेस्ट दिया था, सो आपको ऑप्शन दी जाती है कि आप सबसे पहले तो आपको ये ऑप्शन दी जाती है जिस दिन आप टेस्ट देते हैं, आपका रॉ स्कोर आपके सामने आता है। रॉ स्कोर्स को देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपका ओरिजिनल स्कोर सेम होगा। राइटिंग के अलावा क्वांट और वर्बल के स्कोर्स आपके आ जाते हैं। राइटिंग का स्कोर ऑफ कोर्स नहीं आता इमीडिएटली आफ्टर द टेस्ट। तो आपसे कहा जाता है कि आप टेस्ट रिपोर्ट करें या ना करें। सो यू कैन opt not to report your scores to any of the institutions, by which you will be losing। आपके 4 institutions ऐसे होते हैं जिनको आप 4 institutions को आप भेज सकते हैं, वो आप नहीं भेज सकेंगे, but that's fine। आप अपना स्कोर रोक सकते हैं ताकि अगर for some reason, for odd reason or whatever, आप समझते हैं कि आपका टेस्ट अच्छा नहीं हुआ, you didn't feel that well, या आपकी तैयारी अगर अच्छी नहीं थी तो फिर तो आपको ज़्यादा टाइम का रिक्वायर्ड है। But point is कि you can opt not to report your scores। लेकिन if you are intending to report your scores, तो फिर भी आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। आप ये कर सकते हैं कि आप अपना मोस्ट रीसेंट स्कोर, तो मैं एग्जांपल दे रहा था कि 2 महीने या 6 महीने पहले आपने एक जीआरई स्कोर लिया है या 1 साल पहले आपने जीआरई टेस्ट अटेम्प्ट किया, उसमें जो स्कोर है उसको आप भूल जाएं। आपका जो करंट स्कोर आया है उसको आप रिपोर्ट कर सकते हैं। दैट इज द ऑप्शन दैट इज अवेलेबल ऑन द टेस्ट डे। दूसरी ऑप्शन ये अवेलेबल है कि आप पिछला वाला और आज वाला दोनों भेज सकें। ये इसलिए होता है कि अगर आज का टेस्ट आपका बुरा हुआ और पिछली दफा भी आपने ये सोचा था कि यार वो बुरा था, या फॉर वॉट एवर रीजन आपने कहा कि मैं दोबारा अटेम्प्ट करता हूँ, तो आपको ये होगा कि मैं दोनों रिपोर्ट कर सकता हूँ। क्या नहीं हो सकता? वो नहीं हो सकता कि आप पिछला सिर्फ रिपोर्ट करें। ये टेस्ट डे पे आप नहीं कर सकते। टेस्ट डे के बाद आप अलग से एडिशनल पेमेंट करें, 4th ऑप्शन ले लें, और 4th ऑप्शन ये होती है कि आप प्रीवियस में से कोई भी टेस्ट लें। तो आपका मोस्ट रिसेंट भी आप ले सकते हैं और बाकी भी कोई ले सकते हैं। आप चाहें तो ऑप्ट कर सकते हैं कि आपके जो स्कोर, यूनिवर्सिटीज को कोई तरीका नहीं है, यूएसईएफपी के पास कोई मेथड नहीं है। इवन दो आप अगर यूएसईएफपी के ऑफिस में भी जीआरई का टेस्ट देंगे तब भी यूएसईएफपी के पास कोई राइट नहीं है, ना ही वो स्कोर्स आपके प्रीवियस देख सकते हैं अगर आपने वो रिपोर्ट नहीं किए इस पर्टिकुलर मेथड। इस स्कोर सिलेक्शन ऑप्शन को हम स्कोर सिलेक्ट ऑप्शन जीआरई की टर्मिनोलॉजी है उसके उसमें लेते हैं। किस तरह के क्वेश्चन टाइप्स हैं, लेट्स गो थ्रू देम। क्वांटिटेटिव रीजनिंग टाइप्स के जो क्वेश्चंस हैं वो मल्टीपल चॉइस सिंगल आंसर्स हो सकते हैं। मल्टीपल चॉइस सिंगल आंसर्स का मतलब है कि आपका जो टिपिकल स्टैंडर्ड आपने सुना होता है जीआरई के बारे में, जनरल एमसीक्यूज के बारे में, वो ये होता है कि मल्टीपल चॉइस है जी, इसका मतलब आपने एक पिक करना है। नहीं, मल्टीपल चॉइस बाय द वर्ड इटसेल्फ मींस कि यू हैव मल्टीपल चॉइसेस, बट आउट ऑफ दोस यू कैन आइदर पिक वन और यू कैन पिक मोर। सो एक ऑप्शन तो ये है कि आप एक पिक करें,
और ये सबसे अच्छे सवाल है, और शुरू के टेस्ट काफी हद तक इसी तरह के होते थे, जीआरई और द अदर टेस्ट। प्रॉब्लम क्या, प्रॉब्लम ये है जी कि इफ देयर आर 100 स्टूडेंट्स इन अ क्लास, अज्यूमिंग कि उनमें से किसी को कुछ भी नहीं आता टेस्ट के बारे में, एंड एवरीवन जस्ट गेसेस एंड एमसीक्यूज हैं सिंगल आंसर के साथ, सो 20% स्टूडेंट्स, या हर स्टूडेंट के पास ये चांस है कि वो 20% अपने आंसर्स ठीक कर लेगा, और 20% ऑफ द स्टूडेंट्स विल हैव करेक्ट आंसर्स। नाउ दैट्स अ की थिंग, आपको कुछ भी नहीं आता और फिर भी आप कर लेते हैं, वर्सेस समवन जिसको टेस्ट के बारे में कंफर्म था कि ऑप्शन बी या सी में से कोई एक ठीक है, ए ठीक नहीं हो सकता, डी और ई भी ठीक नहीं हो सकता। अगर इतना कुछ कर लिया है तो उसको थोड़ा बहुत क्रेडिट मिलना चाहिए था, लेकिन नहीं, डी और ई में, सी और डी में कंफ्यूज होने के बाद वो डी पिक कर लेता है, एंड आंसर ऑप्शन लेट्स से वाज सी, और एक बंदे ने गेस किया एंड दैट स्टूडेंट गॉट इट राइट। सो ये वाले एक तरह से बहुत बेहतर चांस है। इस चांस को मिनिमाइज करने के लिए उन्होंने दूसरी ऑप्शन ये रखी है कि मल्टीपल चॉइस, लेकिन यू कैन ओनली सिलेक्ट आउट ऑफ द 6 ऑप्शंस दैट दे गिव यू, आप मल्टीपल ऑप्शंस पिक कर सकते हैं। सो अगर ऑप्शन ए और डी ठीक हैं और आपने ए सिर्फ पिक किया तो आपको आंसर नहीं मिले, पार्शियल क्रेडिट्स नहीं। सो ए एंड डी हैज टू बी दिस। तो आप अब ऑप्शंस देखें, लेट्स से अगर कुछ भी किसी को नहीं आता और ए और डी या ई या एफ तक ऑप्शंस, ए बी सी डी ई अलग से पिक हो सकते हैं, 6 ही ऑप्शन। ए के साथ बी पिक किया जा सकता है, ए के साथ सी पिक किया जा सकता है, ए के साथ डी पिक किया, 5 ही ऑप्शन हैं। फिर बी के साथ ए, बी के साथ, मतलब सारी ऑप्शन रिपीट, 4 और ऑप्शन आ जाएंगी, हंड्रेड्स ऑफ दोज ऑप्शन बन जाएंगी। ए बी सी डी सी के हो सकते हैं, बी सी डी ई बी सी के हो सकते हैं, ऑल ऑफ दोज ऑप्शन आर करेक्ट। सो मल्टीपल चॉइस, मल्टीपल पिक में आपको बहुत ज्यादा रेयर चांस है कि आप गेस वर्क पे ठीक कर सकें, और पार्शियल क्रेडिट्स नहीं है। सो आपको जो ऑप्शंस करेक्ट हैं वो और सिर्फ वो ही पिक करनी है। क्वांटिटेटिव कंपैरिजन क्वेश्चंस, 20 क्वेश्चन हैं जी टोटल आपके जीआरई के क्वांट सेक्शन में, एक और दो सेक्शंस के हिसाब से 40 क्वेश्चन आपके टोटल। उन 40 में से तकरीबन 14 से 15 क्वेश्चन आपके क्वांटिटेटिव कंपैरिजन के क्वेश्चन। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। होता क्या है कि आपको दो क्वांटिटीज से पहले एक इन्फॉर्मेशन दी जाती है, वो इन्फॉर्मेशन दोनों क्वांटिटीज पे एप्लीकेबल होती है। एक तरफ क्वांटिटी ए है, इस तरह आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, एंड देयर इज अनदर क्वांटिटी बी। इन दोनों को आपने कंपेयर करना है। अगर आपको लगता है कि क्वांटिटी ए के अंदर जो भी वैल्यू आएगी वो बड़ी है क्वांटिटी बी से, तो आप ऑप्शन ए क्लिक करते हैं, अदरवाइज ऑप्शन बी क्लिक करते हैं अगर बी साइड बड़ी है, और अगर दोनों इक्वल है तो सी पिक करते हैं। What if the information is not sufficient and that you cannot determine for sure कि कौन सी ऑप्शन बड़ी है? किसी जगह पे ऑप्शन ए बड़ी हो सकती है। लेट्स से आप कहते हैं कि x इज ग्रेटर देन 1, और नीचे आप लिखते हैं नंबर ऑफ मिनट्स इन h आवर्स एंड 60 डिवाइडेड बाय h। तो इसके अंदर आपको आप कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी कि h ने तो 1 से बड़ा ही होना है। अगर 1 से बड़ा होना है तो नंबर ऑफ मिनट्स इन h आवर्स विल बी 60 टाइम्स h, दैट विल बी 60 टाइम्स h। लेकिन दूसरी जगह आप 60 को h से डिवाइड करें, बिकॉज h इज ग्रेटर देन 1, यू कैन बी श्योर कि जो क्वांटिटी b है वो 60 से छोटी ही होती जाएगी। लेकिन अगर h ग्रेटर देन 0 ना होता और ना पता होता कि h क्या है, तो h कुड हैव बीन नेगेटिव। तो अगर आप 60 को किसी नेगेटिव नंबर से डिवाइड करते तो वो नेगेटिव नंबर आ जाता, दैट वुड हैव बीन अ शॉर्टर आंसर। अगर h 0 हो जाता तो फिर आपके इस तरफ भी 0 मिनट्स हो जाते, उस तरफ भी आपका नहीं, वो इन्फिनिटी आ जाता। सो आपको देखना पड़ता है, 3-4 तरह की चीजों को प्रोसेस करना पड़ता है क्वांटिटेटिव कंपैरिजन। इज द इंफॉर्मेशन सफिशिएंट फर्स्ट ऑफ ऑल टू बी श्योर टू डिटरमिन कि क्वांटिटी ए ही बड़ी होगी और हर सिनेरियो में बड़ी होगी। दूसरी बात, हो सकता है कि इंफॉर्मेशन सफिशिएंट हो या इस हद तक हो कि आप कंपेयर कर सकते हैं, सिर्फ एग्जैक्ट वैल्यू नहीं ले सकते। फॉर एग्जांपल, एक साइड पे लिखा हुआ x और दूसरी साइड पे लिखा हुआ y, while you cannot बी श्योर कि x जो है उसकी वैल्यू क्या है या y की जो है वो वैल्यू क्या है, लेकिन यू कैन बी श्योर कि x विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन y या y विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन। तो आपकी ये सारी जो स्किल्स हैं इनको टेस्ट किया जा रहा होता है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन टाइप। देन देयर आर न्यूमेरिक एंट्री। न्यूमेरिक एंट्रीज क्वेश्चंस में आपने जो भी आंसर होता है वो खुद पंच कर, लेट्स से आंसर है 42.5, अब आपने 40.5 पंच किया या 40 किया 39, सो देयर इज नो वे, इसमें कोई गैस वर्क नहीं हो सकता। देयर इज एब्सोल्युटली ऑलमोस्ट जीरो प्रोबेबिलिटी कि आप ये तुक्के पे आंसर ठीक कर सकें। सो इसमें आपको खुद कीबोर्ड के थ्रू पंच कर सकते हैं। इसके अलावा आपका जो स्क्रीन पे कैलकुलेटर दिया होगा उसके थ्रू आप इसमें पंचिंग करके आगे जा सकते हैं। इसके अलावा डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस होते हैं। ये क्वेश्चन टाइप्स अलग नहीं है एक्चुअली, डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस होते हैं और उसके जो क्वेश्चन टाइप्स होते हैं वो ऑलमोस्ट बल्कि सेम होते हैं जो आपके रेगुलर होते हैं। लेट्स से आपका एमसीक्यूज हैं, न्यूमेरिक एंट्रीज हैं,
कंपैरिजन के बहुत रेयर होते हैं इस तरह के क्वेश्चंस में, बट दैट इज देयर। रॉ स्कोर एंड एक्चुअल स्कोर्स, होता क्या है कि आप जब टेस्ट खत्म करते हैं तो एक रॉ स्कोर आपके सामने आता है, क्योंकि टेस्ट आपका एक सॉफ्टवेयर जनरेटेड सिस्टम के थ्रू लिया जा रहा होता है और उसके अंदर सारे आंसर्स फीडेड होते हैं एक तरह से, तो आपको रॉ स्कोर तो दे देता है, लेकिन वो आपका ऑफिशियल स्कोर नहीं होता, वो आपका स्केल्ड स्कोर जिसको कहते हैं वो नहीं होता, वो आपका 2 से 3 हफ्ते बाद ईटीएस खुद आपको मेल करता है या जो भी सॉफ्ट कॉपी के थ्रू आपको भेजता है, दैट इज योर फाइनल ऑफिशियल स्कोर। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन और रॉ स्कोर्स एंड ऑफिशियल स्कोर? रेयरली देयर इज अ चेंज कि रॉ और ऑफिशियल स्कोर फर्क हो, लेकिन जिस तरह से मैंने कहा कि थाउजेंड्स ऑफ टेस्ट टेकर्स होते हैं और आपके जो स्कोरिंग होती है वो बाकियों के साथ कंपेयर होती है, एंड दीज आर वेरी स्टैंडर्डाइज्ड वेल डिजाइन कोर्स। में बार बार इस चीज को हाईलाइट कर रहा हूँ। तो ईटीएस क्या करता है कि देखता है कि अगर एक पर्टिकुलर क्वेश्चन, लेट्स से एक टेस्ट स्कोरर है वो 166 का आउट ऑफ 170, दैट्स अ ब्रिलियंट स्कोर, लेकिन उस तरह के 1000 स्टूडेंट्स ने जिनका स्कोर 166 या 166 से ऊपर का है, उन सब ने एक पर्टिकुलर क्वेश्चन गलत किया हुआ, या उनमें से मेजॉरिटी ने 80% लोगों ने एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन गलत किया हुआ। इसका मतलब है कि ईडीएस कहेगा दैट इज आवर फॉल्ट, कि हमने इस स्कोर क्वेश्चन को या तो ठीक नहीं बनाया, देयर मस्ट बी सम कंफ्यूजन। तो फिर वो आपको उसके डिफिकल्टी लेवल के हिसाब से या उसकी कंफ्यूजन के हिसाब से या कितने लोगों ने उसको ठीक या गलत अटेम्प्ट किया, अकॉर्डिंगली वो आपको अलाउ करता है कि आप इसको टर्मिनेट कर लें, आप इसके स्कोर को किसी और तरह से काउंट कर लें या आपके उस स्कोर को ड्रॉप किया जाता है। ये उनका इंटरनल मैकेनिज्म, वी डोंट नो कि एग्जैक्ट मैकेनिज्म क्या होता है, लेकिन हमें इतना पता है कि स्केल्ड स्कोर्स बनते हैं जो कि इक्वेटिंग का प्रोसेस होता है उसके थ्रू आते हैं, और उसमें आपको एनालाइज किया जाता है कि आपका डिफिकल्टी लेवल क्वेश्चन का किस तरह का था और कितने ज्यादा लोगों ने उसको अटेम्प्ट करते हुए गलती की है। अकॉर्डिंगली वो आपके रॉ स्कोर को थोड़ा सा स्केल डाउन या स्केल अप कर सकते हैं। और यही चीज जो मैंने आपको मुश्किल सवाल के बारे में कही, ये ठीक सवाल के बारे में भी हो सकती है कि लेट्स से 135 की एवरेज स्कोर का कोई टेस्ट टेकर है और उसने एक पर्टिकुलर क्वेश्चन ठीक किया, और उसी तरह के बहुत से और स्टूडेंट्स ने 90% लोगों ने वो क्वेश्चन ठीक किया विच वुड हैव बीन अदरवाइज अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, तो वो आपके स्कोर को थोड़ा सा रिड्यूस कर देंगे। सो स्केल्ड स्कोर्स आर डिफरेंट। दूसरी चीज ये है कि जीआरई का जो 2 क्वांट सेक्शंस हैं, इवन वर्बल सेक्शंस, ये सेक्शन लेवल एडेप्टेबिलिटी। सेक्शन लेवल एडेप्टेबिलिटी का ये मतलब है कि आपका एक सेक्शन दूसरे सेक्शन से डिफिकल्टी लेवल में फर्क होगा और उसकी दूसरे सेक्शन की डिफिकल्टी आपके आंसर जिस तरह के आपने पहले सेक्शन पे किए उस पर डिपेंड करता है। होता क्या है कि शुरू में कांस्टेंट टेस्ट, इसका मतलब है कि आपका हर सेक्शन में सेम डिफिकल्टी लेवल के क्वेश्चंस हैं, यूजुअली डिफिकल्टी लेवल आगे जाता जाता था, यहाँ पे ऐसा नहीं होता, आपके जो डिफिकल्टी लेवल है वो रैंडमली असाइन होता है हर सेक्शन के अंदर। लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा कि इसमें बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, तो उनके लिए टेस्ट डिफिकल्टी लेवल हायर होना चाहिए और ग्रेजुएट करने में, ग्रैन्युलर स्कोरिंग देने में जरा आसानी हो जाती है, तो आपके क्वेश्चंस का जो डिफिकल्टी लेवल है वो वेरी करना चाहिए। तो उन्होंने एक नया पैटर्न इस्तेमाल किया जो कि क्वेश्चन लेवल एडेप्टेबिलिटी। होता क्या था कि आप 0 से 100 के स्केल पे होते हैं, आपको इस डिफिकल्टी लेवल में यहाँ पे एक क्वेश्चन दे, अगर आप ये ठीक कर लेते हैं तो आपकी रेंज बढ़ा देते हैं, अगर आप ये भी ठीक कर लेते हैं तो वो समझता है कंप्यूटर कि आपको इससे भी थोड़ा टफ क्वेश्चन देना चाहिए, तो आपका स्कोर इससे ज्यादा कर देता है और स्कोर नेक्स्ट क्वेश्चन टफ ले आता है। ये भी ठीक करते हैं आपका और ऊपर चला जाता है, ये भी ठीक करते हैं ऊपर चला जाता है, फिर आप गलत करते हैं फिर आपको नीचे लाता है, फिर आपको थोड़ा और नीचे ला के देखता है, आप फिर ठीक कर जाते हैं फिर ऊपर करता है, तो वो आपकी एक रेंज सेट कर लेता है, उस रेंज में आपको फॉलो करते करते 20, 30, 40 क्वेश्चन में इट टेक्स अ डिसीजन कि आपका ये लेवल बनता है, तो आपका क्वेश्चन जो है वो एडेप्टिव। इसमें प्रॉब्लम क्या है? इसमें प्रॉब्लम ये है कि जब आपको ज्यादा टफ क्वेश्चन आना शुरू हो जाते हैं तो इसका मतलब है आप वो क्वेश्चन गलत करना शुरू कर देंगे, तो आप चाहेंगे कि आप रिवर्ट बैक करें। आप रिवर्ट नहीं कर सकते क्वेश्चन लेवल एडेप्टेबिलिटी में, क्योंकि आपका प्रीवियस क्वेश्चंस और अगले क्वेश्चंस की डिफिकल्टी लेवल के साथ असेस हुआ था और उसके साथ प्रोग्रेशन हो रही थी। अगर आप पीछे जा सकते होते तो बड़ा प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लमेटिक इसलिए है कि ह्यूमन साइकोलॉजी को समझा गया कि भाई जरूरी नहीं है कि आपका उस क्वेश्चन का दिल उसी वक्त कर रहा हो, 10 मिनट बाद कर सकता है। हो सकता है आप उस पर्टिकुलर क्वेश्चन टाइप के बारे में बहुत ज्यादा फिनिकी हो जाते हो, पैनिक कर जाते हो, या आप उसको बाद में अटेम्प्ट करना चाहते हो, या आप कंफ्यूज्ड हैं, आपने 2-3 मिनट्स लगाए और आपने सही तरह नहीं उसको कर सके, या यू आर अनश्योर अबाउट, यू वांट टू कम बैक टू इट विद अ रिफ्रेश्ड माइंड, तो आपको क्वेश्चन पे वापस जाने की ऑप्शन होनी चाहिए।
तो इन सारे फैक्टर्स को कंसीडर करते हुए और पहले वाले जो एक्सपीरियंसेस थे उसको भी देखते हुए उन्होंने कहा कि अच्छा आप सेक्शन लेवल अडेप्टेबिलिटी करते तो आपका एक सेक्शन में डिफिकल्टी लेवल एक आता है और अगले सेक्शन का डिफिकल्टी लेवल फर्क होता है. लेवल ऑफ डिफिकल्टी विद इन अ सेक्शन is random. So question 1 on question 19 और question 18 के डिफिकल्टी लेवल रैंडमली असाइन होता है एक पर्टिकुलर सेक्शन. लेकिन जब सेक्शन कंप्लीट हो जाता है तो अगला सेक्शन जो है उसका डिफिकल्टी लेवल आपके पहले से परफॉर्म होता है. ये इंपॉर्टेंट इसलिए है. अब यहाँ पे प्रॉब्लम, लेट्स से मैं बहुत से क्वेश्चंस गलत कर लेता हूँ सेक्शन 1 में, तो मेरा अगला सेक्शन आसान आ जाएगा, तो उसमें तो मैं बहुत अच्छा परफॉर्म करूंगा. आपने ऑन द अदर हैंड पहले सेक्शन को बहुत अच्छा अटेम्प्ट किया, इसकी वजह से आपका अगला सेक्शन डिफिकल्ट आ गया और आपके उसमें कम आंसर्स ठीक आना शुरू हो गए. तो हो सकता है कि आपका स्कोर और मेरा जो टोटल अटेम्प्टेड आंसर्स हैं वो दोनों के बराबर ठीक आ रहे हैं. उसकी वजह यह है कि मेरा अगला सेक्शन आसान है. दैट्स अ प्रॉब्लम. ऑफ कोर्स देयर इज अ प्रॉब्लम, लेकिन उसका ये है कि जो सेकंड सेक्शन अगर तो डिफिकल्ट आया तो उनमें हर क्वेश्चन की जो वेटेज है वो फर्क. तो जिसको डिफिकल्ट सेक्शन आएगा उसके हर क्वेश्चन की जो वेटेज है स्कोरिंग में कि उसने ठीक किया या गलत किया उसकी ज्यादा होगा. अगर गलत किया, बाय द वे देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, तो अगर आपने ठीक किया तो आपको ज्यादा इंक्रीमेंट मिलता है. अगर आपके पास इजी सेक्शन आया था तो आपने ठीक क्वेश्चन अगर अटेम्प्ट किया तो आपको बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं मिलती. सो सेक्शन लेवल अडेप्टेबिलिटी से आपकी स्कोरिंग पे ये फर्क नहीं पड़ता कि आप पहले सेक्शन को गलत अटेम्प्ट. यू मस्ट अटेम्प्ट बोथ द सेक्शंस वेरी सीरियसली. और साइंटिफिकली मैं आपको बताता हूँ होता क्या है कि आप जब टेस्ट में बैठने जाते हैं 130 और 170 आपका बैंड होता है. अब उसमें उन 40 क्वेश्चंस में आपको स्कोर देना होता है. कहीं पे आपकी लक हो सकती है, कहीं पे आपका बैड लक हो सकती है, कहीं पे आपने कैलकुलेशंस में टाइम लगा लिया, कोई और इश्यू आ गया. बेहतर ये होगा कि मैं पहले सेक्शन में अंदाजा लगा लूं कि आपका क्या रेंज मिलती है. तो मैं पहले सेक्शन के बाद कम से कम इस कंक्लूजन पे हो सकता है पहुंच जाऊं कि आप 130 से ऊपर, 140 से भी ऊपर हैं, आप 145 से ऊपर के लगते हैं, लेकिन आप 165 से ऊपर नहीं लगते. सो मैं आपको 145 और 160 या 165 के दरमियान लॉक कर लूंगा. अब मेरा सेकंड सेक्शन आपके उस नैरोड रेंज ऑफ स्कोरिंग को ज्यादा डिटरमिन करने के लिए हेल्प करेगा, मुझे ज्यादा शार्प मुझे एनालिसिस प्रोवाइड करेगा. तो ये फायदा होता है सेक्शन लेवल अडेप्टेबिलिटी का. टेस्ट डिजाइन एंड फीचर्स. प्रीव्यू एंड रिव्यू कर सकते हैं. किसी भी क्वेश्चन पे आप उसको मार्क कर दें कि जी मैं इस क्वेश्चन पे वापस आना चाहता हूँ. आप कोई उसका आंसर लेके जाएं या बगैर आंसर दिए वो आगे जाना चाहिए, अप टू यू. और जब आप मार्क का करके निकलते हैं तो उसके बाद जब रिव्यू ऑप्शन में आते हैं कि किस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर चुके हैं और किसको नहीं कर चुके, वो सारे लिस्ट आपके सामने आ जाती है. और जहाँ पे मार्क हुआ होता है वहां पे आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन मार्क हुआ है, इसका मतलब है यू हैव टू गो बैक. मतलब आपने डिसाइड किया था. लेकिन अगर टाइम पूरा हो जाए तो फिर आपका कुछ भी नहीं हो सकता. वो सेक्शन आपने मार्क किया हो तो जो मार्क आपने अगर आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया, आपने उस पर ऑप्शन डी ले ली लेकिन मार्क भी कर दिया, अगर टाइम खत्म हो गया तो ऑप्शन डी को एक्सेप्ट कर लिया जाएगा. तो आपके उसको मार्क करने की वजह से आपका जो भी उसमें आंसर था उसको वेरी नहीं किया जाता. सो मार्किंग आपने अपने पर्पस के लिए की होती है कि मैं वापस आना चाहता हूँ. लेकिन अगर आपको टाइम नहीं मिलता किसी वजह से उस पर आने का, तो मार्क किया हो या ना किया हो इससे आपके उस पर्टिकुलर क्वेश्चन की असेसमेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता. सो आई वुड सजेस्ट कि आपको हमेशा क्वेश्चन को आंसर करके आगे जाना चाहिए, चाहे गेस वर्क करें, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है. तो आपको हर दफा आंसर अटेम्प्ट जरूर कर लेना चाहिए. ठीक, आप समझते हैं कि आपको टाइम मिलेगा या आप रिफ्रेश माइंड के साथ वापस आना चाहते हैं तो मार्क करें और फिर एबिलिटी और टू चेंज. इसका मतलब अगर आपने क्वेश्चन नंबर 5 पे ऑप्शन डी ली थी, आप थोड़ी देर बाद सोचते हैं यार ये मुझे याद आ गया, सो आई माइट हैव टू चेंज ऑप्शन ए लेना चाहते हैं, आप ऑप्शन ए कर सकते हैं. सो सेक्शन लेवल अडेप्टेबिलिटी में विद इन द सेक्शन आप सारे क्वेश्चंस पे जाके अपने आंसर्स को चेंज कर सकते हैं. लेकिन जब सेक्शन फ्लिप हो जाएगा तो उस सेक्शन के किसी भी क्वेश्चन पे आप वापस नहीं जा सकते. ये टेस्ट स्क्रीन होती है. और जैसा कि आप पहले ऑप्शन में देख सकते हैं, ये वाली आपने कहा 5वें क्वेश्चन के बाद कि भाईजान ये मेरे बस की बात नहीं. सो यू कैन ऑलवेज क्विट द टेस्ट और यू कैन एक्चुअली exit a section. I would really no one would ever recommend you that option because you have paid for it and you always have that option of not sending your scores. So you must complete your test and see the raw scores. And if luck strikes, maybe it's a good one. But आप पैसे दे के आए, just for the experience of it, maybe you should continue. So I don't think you should be taking these options at all. पूरी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है किस क्वेश्चन पे आप इस वक्त हैं, कितने क्वेश्चंस रहते हैं, आप
कितने टाइम पे बैठे हो. सो यू कैन ऑलवेज हाइड दैट टाइम, यू शुड नॉट, बट वहां पे स्ट्रेस लेवल्स हाई होते हैं. स्ट्रेस मैनेजमेंट इज वन ऑफ द की थिंग्स दैट यू हैव टू डू एज पार्ट ऑफ योर टेस्ट प्रिपरेशन. You can hide the time, up to you. I would not highly recommend it. So next वगैरह आप करके जा सकते हैं. जिस क्वेश्चन पे आप हैं वहां पे अगर आप ये मार्क कर देंगे तो मार्क का मतलब वो क्वेश्चन मार्क. एंड आफ्टर अ कपल ऑफ मिनट्स आप इस बटन पे आके रिव्यू का बटन क्लिक करेंगे. आपके पास सारे क्वेश्चंस की लिस्ट आ जाएगी कि इस क्वेश्चन को आपने अटेम्प्ट कर लिया है, इसका ब्लैंक छोड़ा हुआ है, इसको मार्क किया. सो ब्लैंक तो कभी नहीं छोड़ना चाहिए. मार्क आप कर लें लेकिन कुछ ना कुछ अटेम्प्ट लेके जाएं, और मार्क वाले पे आप वापस जा सकते हैं. और दूसरी बात मैं आपको दोबारा क्लियर करना चाह रहा हूँ, डिफिकल्टी लेवल हायर नहीं हो रहा होता. तो आप ये ना अज्यूम करें कि क्वेश्चन नंबर 16 इज टफर, 17 इज इवन टफर, 18 इज टफर. नहीं, ऐसा नहीं है. रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन है डिफिकल्टी लेवल की विद इन अ सेक्शन. कॉन्सेप्ट्स, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि किस तरह के कॉन्सेप्ट्स को आप टेस्ट किया जा रहा है. द आंसर टू दैट इज जीआरई का एक मैथ रिव्यू है जो कि ईटीएस प्रोवाइड करती है. मैं आपको अगली स्क्रीन पे दिखा देता हूँ. ये आप देख सकते हैं कि ये वेबसाइट है ets.org/all the link. आप मैथ रिव्यू गूगल पे लिखेंगे तो आपके पास ये सारी आ जाएगी. ये सारे कंटेंट्स हैं, तकरीबन 200 पेजेस का ये डॉक्यूमेंट है. इसमें सारे कॉन्सेप्ट जो टेस्ट होते हैं जीआरई के उसके बारे में बताया गया और उनको सिखाया भी गया. ऑल्दो द सैंपल क्वेश्चंस टेकन फॉर दैट आर नॉट जीआरई डिफिकल्टी लेवल, सिर्फ कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करेंगे. एंड दिस इज 100% डोमेन of all the contents that you will be covering in the quant section. So yes, you have to know these concepts. इसमें कोई शक नहीं है. और किस तरह के ब्रॉडली टॉपिक्स हैं? अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, डेटा इंटरप्रिटेशन. जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं या इस तरह के और प्रॉब्लम देखिए वो कॉन्सेप्ट्स यूज कर रहे होते हैं. इन्हीं के अराउंड ये जो कॉन्सेप्ट्स आपके यूज हो रहे हैं उसको कैसे आपने कन्वर्ट करना है, दैट डिपेंड्स. ज्योमेट्री में फॉर एग्जांपल आपको ये आना चाहिए कि किस तरह की ट्रायंगल्स होती हैं, क्या शेप्स होती हैं, किस तरह के फॉर्मूलाज होते हैं, एंगल मेजरमेंट्स क्या होती हैं, बाकी उनके साथ रिलेशनशिप्स किस तरह के होते हैं, इंट्यूटिव कॉन्सेप्ट्स किस तरह के होते हैं. ये चीजें आपको आनी चाहिए. ऐसा नहीं है कि क्वांटिटेटिव स्किल्स आपने कहा था मैथ स्किल्स नहीं, मैथ स्किल्स नहीं है. बेसिक मैथ स्किल्स जरूर है पहले तो. दूसरा, जिन चीजों को यूज करके आपके हायर लेवल स्किल्स. इसकी एग्जांपल मैं ऐसे देता हूं कि आपको डिबेटिंग कंपटीशन पे बुलाया जाता है और आप कहते हैं कि जी सिर्फ एक है कि आपको चाइनीज में डिबेट करनी. अब अगर मेरी बहुत टूटी फूटी चाइनीज भी है और मेरे डिबेटिंग स्किल्स ऑलमोस्ट जीरो हैं, तो भी उस बंदे से मैं बेहतर परफॉर्म कर लूंगा, द वन हु डज नॉट नो एनी चाइनीज एट ऑल, having good debating skills. So math concepts are just being used as tools to assess your higher level skills, and also of course some basic math skills too. For example, laws of exponents. अगर ये आप वहां पे solve कर सकते हैं, for example आप वहां पे खुद से टेस्ट में बैठे हुए इस चीज को x पावर a x पावर b is equal to x की पावर a plus b होता है, कर सकते हैं. लेकिन वो जो 2-4 मिनट आपने जाया करने हैं उस चीज वो आपको नहीं करने चाहिए. यू शुड हैव ऑल दैट थिंग कवर्ड. इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप क्या कॉन्सेप्ट्स आपको आते हैं उनको अप्लाई कैसे करना है, उसकी फर्दर एप्लीकेशंस को, नॉलेज को कैसे यूज करना है. ज्योमेट्री में फॉर एग्जांपल किस तरह की ट्रायंगल्स हैं, 60 30 90 ट्रायंगल्स क्या होती हैं, 1 के ऑपोजिट जो है 2 की लेंथ बनती है. अगर 60 30 90 ट्रायंगल्स हैं, 45 45 एंड 90 के ट्रायंगल्स का किस तरह होता है, आइसोसेलेस का क्या. अगर ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको आते हैं तो आप ज्यादा जल्दी कैलकुलेशंस कर सकते हैं. और टाइम स्ट्रेस्ड एनवायरनमेंट में आपको बहुत ज्यादा ये चीज हेल्प करती है कि आप देख सकें कि कितना क्विकली आप क्वेश्चन की लैंग्वेज पे उसको आंसर करने में लगाते हैं रादर देन इस तरह के कॉन्सेप्ट्स को रिकॉल करने. सो प्रैक्टिस डेफिनेटली इज द की. फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन है कि 33 माइल्स पर गैलन एक गाड़ी चलती है. सो दैट्स द क्वेश्चन. इंपॉर्टेंट ये है कि 33 माइल्स चलती है पर गैलन. विद दैट यू कैन सी कि 10 gallons are required for 330 miles, and with the cost of 10 gallons given $2.95, you can see almost अगर 2.95 को आपको 2.95 नहीं लेना चाहिए. ये कुछ tips and tricks and strategies होती हैं. 2.95 is almost 3. It's slightly less than 3. ये फैक्टर भी माइंड में रखना जरूरी है, लेकिन इसको आप 3 करें और फिर आप ये कहें कि it will cost you a little less than $30 to cover that trip, right? अब आपसे पूछा गया 350 के बारे में, which is slightly higher on the 330 side. तो फिर आप ये कहेंगे कि आपको इसी 350 डिस्टेंस को कवर करने के लिए अराउंड $30 ही चाहिए. तो आप इनमें से ऑप्शन पिक करें. ये देखें, आप
से कहा जा रहा है कि आप मॉर्गेज पेमेंट्स में कुछ अमाउंट्स सेविंग्स कह लें या टोटल इनकम में से देते हैं। अगर केट ने 13,000 समथिंग अमाउंट स्पेंड किया मॉर्गेज पे, मैंने इसको सेविंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आगे फिर ले लिया था। मॉर्गेज को आप सेविंग्स के तौर पे भी ले सकते हैं फिलहाल, ऑल्दो वेरी डिफरेंट थिंग्स, लेकिन मेरी आगे की कैलकुलेशन में वर्ड सेविंग्स आ रहा है मॉर्गेज की जगह। तो आप ये बताएं कि उसकी इनकम किस ब्रैकेट में हो सकती है। तो आप ये कहेंगे कि 1/4 ऑफ अगर इनकम इतना बनता है जो कि 13,470 है, तो आपकी टोटल इनकम ये है पूरे 4 पोर्शंस। जबकि 1/3 का मतलब ये है कि आपकी इनकम उतनी ही हो तो फिर 1/3 बहुत बड़ा कंपोनेंट बनेगा, वर्सेस अगर आप 1/4 ऑफ द सेम इनकम लें और आप ये कहते हैं कि उसी मॉर्गेज अमाउंट को अगर मेरी सैलरी 1/3 भी होती तो भी मुझे वही अमाउंट पे करनी पड़ती, तो आपको अपनी इनकम को रिड्यूस करना पड़ेगा। कि देखें आपकी अब इनकम ये बनेगी अगर आप सेम मॉर्गेजेस रखना चाहते हैं। इस केस में सेम है, इस केस में फर्क है क्योंकि आपने इनकम को सेम रखा है और मॉर्गेज पेमेंट 1/3 जो है वो बड़ा अमाउंट बनेगी और 1/4 छोटा अमाउंट बनेगी। सो इन दिस केस मॉर्गेज पेमेंट जिसको मैंने गलती से सेविंग्स लिखा हुआ है, आपकी टोटल इनकम बनती है 53,880 और अगर आप 1/3 ऑफ द इनकम जो कि 1340 बनती है वो दे रहे होते तो आपकी इनकम बनती 40,410। तो कौन सी ऑप्शन आप पिक करेंगे? आप देखें 40,410 से ऊपर की कोई भी इनकम और 53,880 से नीचे की कोई भी इनकम अगर आपकी होगी तो योर मॉर्गेज पेमेंट्स विल बी बिटवीन 1/3 एंड 1/4 ऑफ योर एंटायर इनकम व्हिच इज इक्विवेलेंट टू 13,400। तो इसमें आप देखें कि आप ऑप्शन ए को छोड़ के बाकी सारी ऑप्शंस कवर कर रहे हैं, इवन द लास्ट वन 53,880 तक आपकी इनकम हो सकती है और यहाँ पे जो लास्ट ऑप्शन है वो है 53,808। सो दिस इज इंक्लूडेड। सो जब तक ये चारों ऑप्शंस आप करेक्टली टिक नहीं करेंगे आपको कोई पार्शियल क्रेडिट नहीं मिलेगा। डेटा एनालिसिस क्वेश्चन इस तरह से होते हैं कि कुछ टेबल्स होती हैं, डेटा होता है, उसके अराउंड क्वेश्चंस होते हैं और आपके क्वेश्चन टाइप्स उसी तरह के होते हैं। इसको यू कैन हैव अ लुक एट इट। आपके पास अवेलेबल ऑप्शंस क्या हैं टेस्ट को प्रिपेयर करने के लिए? आई हाईली रिकमेंड बैरन्स की बुक। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि टेस्ट मटेरियल्स हैं, सैंपल क्वेश्चंस हैं, फुल फ्लेज टेस्ट हैं, प्रैक्टिस बिट्स आपको जो इंटरनेट पे मिलते हैं वो हैं, गाइड बुक्स हैं, ये सारी रिसोर्स मटेरियल्स। आई वुड हाईली रिकमेंड टू यूज अ बुक, हैंडी बुक हो जिसको आप हाईलाइट कर सकें, देख सकें, प्रोग्रेशन देख सकें, अपने कॉन्सेप्ट्स को प्रॉपर्ली पढ़ सकें। इसके अलावा ईटीएस की ऑफिशियल गाइड्स अवेलेबल हैं, ऑनलाइन भी कुछ मटेरियल्स और भी अवेलेबल हैं, लेकिन आपको पता नहीं चलता कि विच मटेरियल्स आर बेटर। अक्सर मटेरियल जो इंटरनेट पे अवेलेबल है वो फॉल्टी। एक तो ईटीएस बहुत केयरफुली डिजाइन करता है इस तरह के क्वेश्चंस को, तो हर कोई एक तो बना नहीं सकता। सेकेंडली ये है कि उस ट्रैफिक को इनवाइट करने के लिए बहुत से इंटरनेट साइट्स जो हैं वो बहुत डिफिकल्टी लेवल हायर कर देती हैं, कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस बना देती हैं। नए यूजर्स को लगता है कि यार ये मुझे वाकई नहीं आता, ये बड़ी अच्छी वेबसाइट। ऐसा नहीं होता। आपको अपने आप को फैमिलियराइज करना चाहिए विद स्टैंडर्ड रिसोर्सेज। तो आपके पास मैनहट्टन की बुक्स हो सकती हैं, प्रिंसटन रिव्यू की हो सकती हैं। होता क्या है कि इसमें जब आपके पास ऑप्शंस आंसर्स के होते हैं, फॉर एग्जांपल आपने टेस्ट अटेम्प्ट किया, कुछ क्वेश्चंस गलत हुए, आप उसमें आंसर्स देखते हैं, you must see कि what particular explanation of those answers is most suited to you. That is where the importance of relevant book comes, and I have found Barron's GRE to be most effective, most relevant, and the explanations very very clear, and before explanation सारे concepts को काफी हद तक clarity से स्टेप बाय स्टेप कवर किया हुआ है। सो आई रिकमेंड दैट। इसके अलावा अवेलेबल ऑनलाइन ऑप्शंस जो हैं उसमें से मगूश है, इसके अलावा प्रेप स्कॉलर हैं, एक दो और इस तरह की हैं जो कि ऑथेंटिकेटेड हैं, बाकियों के बारे में आपको। इसके अलावा कुछ प्रिंटेड मटेरियल वगैरह भी होते हैं। तो आई वुड सजेस्ट कि आप बैरेंस की जीआरई लें और साथ में दूसरी जो भी ऑप्शंस हैं, पिक व्हाटएवर इज द बेस्ट, बट बी स्पेसिफिक अबाउट व्हाटएवर यू पिक। आप एक लें पहले या दो लें, उसको फॉलो थ्रू करें, मल्टीपल रिसोर्सेज में थोड़े 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 ना करें, फॉलो थ्रू करें, अपने आप को प्रोग्रेशन दें, एक प्लान बनाएं, उसके हिसाब से चलें। जो कॉन्सेप्ट्स आपके वीक हैं इस पर हम थोड़ी सी बात मजीद कर लेंगे। और ऑनलाइन मटेरियल्स को आप जरूर ठीक है यूज करें, लेकिन आप देखें कि वो मटेरियल्स अगर आप फ्री बैठे हुए फिर तो कोई भी प्रैक्टिस आपको अच्छी हेल्प करेगी, लेकिन अगर आप डेडिकेटेड एफर्ट के लिए बैठे हैं, यू मस्ट गो थ्रू सम रेलेवेंट मटेरियल्स जो कि यूजफुल हो, जो कि रेलेवेंट हों, जो कि अप्रोप्रिएट हों जीआरई के अपने डिफिकल्टी लेवल से, रेलेवेंस के हिसाब से। ये आपको आस्ता आस्ता खुद भी आइडिया होगा
तो केयरफुल रहना पड़ेगा इसमें आपको, लेकिन यह है कि प्रिपरेशन के लिए आपको प्रैक्टिस जितनी मिलती है आप ज़रूर करें। शुरू ऑथेंटिक सोर्सेज के थ्रू करें और स्पेसिफिक रहें उन सोर्सेज के बारे में। क्या अच्छा स्कोर है, ये बड़ा क्वेश्चन आता है, ऑल्दो इट्स नॉट एग्जैक्टली द डोमेन ऑफ दिस पर्टिकुलर ओरिएंटेशन, बट आई विल ब्रीफली से दैट देयर इज नो गुड स्कोर एज सच। अगर आप जिस फील्ड के लिए अप्लाई करते हैं वहां पे क्वांट ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो आपके क्वांट के स्कोर को देखा जाएगा। जहां पे वर्बल ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो डिसीजन कमेटी लेती है। लेकिन स्कोरिंग इज जस्ट वन पार्ट ऑफ द एडमिशन प्रोसेस और बहुत से और असेसमेंट्स भी आपकी हो रही होती हैं। अगर आपका 8 साल का एक्सपीरियंस है और आप जीआरई स्कोर देते हैं और अगर आपका स्कोर कम आता है, मे बी आपको फिर भी वेटेज दीजिए, आप उस फील्ड में ज्यादा अच्छे परफॉर्म कर सकते हैं। इफ इट रिक्वायर्स मोर अंडरस्टैंडिंग अबाउट हाउ द रियल लाइफ वर्क्स, तो फिर आपके एक्सपीरियंस की बहुत ज्यादा वेटेज हो जाती है। तो आपका अच्छा स्कोर डिपेंड करता है आपकी प्रोफाइल पे और आप जिस डिग्री प्रोग्राम में अप्लाई करते हैं। और बी वेरी क्लियर अबाउट दिस कि आपकी जो स्कोरिंग लोग कहते हैं जी मेरा 300 है या इतना मैं एम कर रहा हूँ, एडमिशन कमेटीज, रिव्यू बोर्ड्स दोनों स्कोर्स को सेपरेटली देखती हैं। क्वांट को अलग देखती हैं और वर्बल को अलग देखती हैं। और आप किस बैकग्राउंड से आ रहे हैं। सो मेनी पीपल से कि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के लोगों को क्वांट में बिल्कुल है, लेकिन उनके बैकग्राउंड को देख के उसको थोड़ा सा डिसएडवांटेज, उस तरह से डिसएडवांटेज नहीं, उसको कंसिडरेशन में लाया जाता है। सेकेंडली दे मोस्ट लाइकली विल बी अप्लाइंग फॉर इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज, तो उनके स्कोर्स का कंपैरिजन भी उनके साथ है। तो जो परसेंटाइल्स का कॉन्सेप्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बट यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दिस कि उनका बैकग्राउंड, अगर उनका बैकग्राउंड स्ट्रांग है, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के लोगों का, बहुत से लोगों का जिनका भी मैथमेटिक्स में बैकग्राउंड है, दैट इज एन एज है, दैट इज देयर। लेकिन यू शुड नॉट बी वरीड अबाउट दैट, बिकॉज आप अपनी एप्लीकेशन में बहुत सी और एस्पेक्ट्स को हाईलाइट कर सकते हैं टू कंपनसेट फॉर अ लिटिल लेसर स्कोर इन एनी ऑफ दोस वर्बल, क्वांट और राइटिंग स्कोर्स। कॉमन गैप एरियाज किस तरह के होते हैं? मैं समझता हूँ कि बहुत से लोगों का ये प्रॉब्लम होता है कि अगर आप सेम मिस्टेक्स कंटिन्यू करते जा रहे हैं कि जी आपने 30 क्वेश्चंस किए, जी वो 3 गलत हो गए थे, कोई बात नहीं, इसका मतलब अच्छा जा रहा है। लेकिन अगर वो 3 क्वेश्चंस हर दफा ही गलत हो रहे हैं, यू मस्ट अटेम्प्ट दोस क्वेश्चंस। आपका फ्रेम चेंज करना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट को क्लियर करना पड़ेगा। सेकेंडली ये है कि जब आप कोई गलती वगैरह करें, प्रैक्टिस सबसे पहले तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करें और स्मार्ट प्रैक्टिस करें। इसका मतलब है कि रेलेवेंट मटेरियल्स हों, टाइमली प्रैक्टिस करें, रेलेवेंट एनवायरनमेंट में रहें, बहुत सी और चीजें। इसका ये मतलब नहीं है कम प्रैक्टिस करें हम, जिस तरह से लॉकडाउन स्मार्ट करने का ये मतलब हो सकता है। लेकिन यहाँ पे प्रैक्टिस स्मार्ट करने का मतलब है कि आप जिन एरियाज में वीक हैं उनको देखें, रेलेवेंट बुक्स, रेलेवेंट मटेरियल्स, टाइम, कंसिस्टेंसी, ये सारी फैक्टर्स हैं जिसको बहुत इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस करना। Familiarize yourself with the concepts and the questions that you are you know about। आपको टेस्ट के बारे में सारी फेमिलियरिटी होनी चाहिए ताकि आपका वो स्ट्रेस कम से कम हो जाए, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। Track your wrong answers more seriously and even so more seriously when आप, मैं इस तरह से गाइड करता हूँ अपने स्टूडेंट्स को कि आप अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं ए से ई तक के ऑप्शंस, यू आर कंफ्यूज्ड अबाउट ऑप्शन बी एंड सी, आई वुड सजेस्ट कि बी के बारे में आप जितने कॉन्फिडेंट हैं, लेट्स से 60%, तो उस पर 60% लिख के आगे करें और सी को आप 40%। और फिर जब आप आंसर्स देखें तो फिर आप देखें कि क्यों 60% की तरफ ज्यादा टिल्टेड थे। अगर वो बेहतर था तो सोचें कि सी के बारे में आप क्यों सोच रहे थे, उस फ्रेम को आपने चेंज करना। एंड व्हाट इफ you were confused between B and C and the answer was D? That's a real worry because your confidence was so misplaced. So these are some common mistakes that people do. Keeping track of time is very important. You must keep track of time. Otherwise ये नहीं है कि मुझे क्वेश्चन आता था जी मैंने तो कर लिया। नहीं, आप वहाँ पे स्ट्रेस एनवायरनमेंट होता है। आपको ये तक बता दूं कि आपको कोई पेपर, कोई कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता। आप पेपर्स के लिए स्क्रैप पेपर्स अगर बहुत यूज करते हैं, वहाँ पे आपको 2 या 3 शीट्स मिलती हैं। फिर आपको जब अगली शीट चाहिए होती है, you raise your hand, a person through the glass sees you, comes to you, asks what's the reason that you're calling him for, and then goes back and gets you new sheets and takes away the older sheets. ये सारा आपको पता होना जरूरी है। इससे आपका स्ट्रेस ओवरऑल थोड़ा कम रहेगा ताकि आप वहाँ पे फ्रस्ट्रेटेड फील ना करें। बट एट द सेम टाइम पॉइंट मेरा ये है कि आप वहाँ पे टाइम के बारे में बहुत कंसर्न हो रहे होते हैं। बेस्ट थिंग इज कि जब आप प्रैक्टिस करें, मैं प्रैक्टिस की बात कर रहा हूँ, जब आप टेस्ट प्रैक्टिस करें तो टाइम का ख्याल रखें। अलबत्ता अगर एक क्वेश्चन जो आप गलत अटेम्प्ट कर चुके हैं उसको ठीक करने के लिए, उसके सारे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, या गलती किस जगह हुई, आपने क्वेश्चन पढ़ने में गलती की, आपने क्वेश्चन की स्टेटमेंट को गौर से नहीं देखा, आंसर ऑप्शंस में कंफ्यूजन सी, आपने उसको नहीं ट्रैक किया, बहुत सी रीजंस हो सकते हैं।
उसको समझने और करने के लिए और उस पर एम्फसाइज करने के लिए चाहे आपको 40 मिनट लगे उस 1-1.5 मिनट के सवाल पे, आपको लगाने चाहिए, बिकॉज दैट्स द प्रॉब्लम ऑफ द फ्रेम ऑफ माइंड। उस फ्रेम ऑफ माइंड को वंस एंड फॉर ऑल सेट करना जरूरी है। And controlling the stress through various means is really helpful. And one key thing is कि टेस्ट में जो आ सकता है, क्वेश्चन टाइप्स, लैंग्वेजेस, बाकी तरह की चीज़ें, बहुत सी प्रैक्टिस के बाद आपके जो एक होल्ड है, टाइम का ख्याल रखना, ये सारी चीज़ें अगर आप पहले से करके बैठे होंगे तो आप ओवरऑल स्ट्रेस को बेटर मैनेज कर पाएंगे। Know yourself, your patterns. Where do you make mistakes? Are you very ugly in understanding the language of the statement of the question? By ugly, I was meaning to say that many people repeatedly make a mistake in understanding what is being asked and what they understand it to be what was being asked. So if you are not very careful about those things, या आंसर ऑप्शंस आपने नहीं देखी, आप आंसर ऑप्शंस देख के दूसरे ट्रैक पे चले गए जबकि क्वेश्चन कहीं और पूछ रहा था, बाय द वे ये बेहतर होता है कि आप खुद से पहले क्वेश्चन अटेम्प्ट करें और फिर आंसर ऑप्शंस की तरफ जंप इन करें। So all of these things are important. अपने पैटर्न्स, अपने बिहेवियर्स को समझें। When giving sample tests, आप relevant environment, serious environment करें। आप डिस्टर्बेंस में आ रही हो, 5 मिनट अभी अटेंड किया, ओ किसी ने बुला लिया, फिर चले गए, फिर वापस आए, फिर बैठे 10 मिनट किया, नहीं। आप सिमुलेट कर रहे हैं, पूरी तरह सिमुलेट करें, टाइम का ख्याल रखें, एनवायरनमेंट का ख्याल रखें, डिस्ट्रैक्शन ना हो रही हो, अपने आप को लीवे टाइम ना दें, मैं थोड़ा सा कैलकुलेटर रिकमेंड कर लूँ, थोड़ा सा ये फार्मूला देख लूँ, ऐसा नहीं है। आपने 100% उसको फॉलो करना है। इसकी वजह से आपका कॉन्फिडेंस लेवल बेहतर होगा कि जिस स्कोर को आप सैंपल्स में कर पा रहे हैं, इज इट सेम। And then plan your preparation well. For example, make a goal, complete करें प्रैक्टिस टेस्ट को, वहां पे जहां पे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उनको ज्यादा टाइम्स दें, डिफरेंट मटेरियल्स करें, और ये सारा मुझे डॉक्टर गूगल ने बताया। अगर आप गूगल पे लिखें कि हाउ टू प्लान फॉर GRE तो एग्जैक्टली ये लिस्ट आती है। एंड फ्रॉम दैट माय लास्ट पॉइंट टू कंक्लूड इज कि अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, अवेलेबल गाइडेंस है, दैट्स नॉट द प्रॉब्लम। You must understand these things. ठीक है, इस ओरिएंटेशन का आप फायदा उठाएं, बाकी चीजों का आप फायदा उठाएं, लेकिन the important thing is get serious about it, plan it well, and then follow that plan. I'm sure कि आपको कुछ help मिली होगी इस ओरिएंटेशन से। There are many resources available, और USEFP की बहुत सी resources में से advising services हैं जो आप ले सकते हैं। इसके अलावा बहुत से social media networks के through आप इन resources को और इनके बारे में different information को access कर सकते हैं। All the best. I would see if I can answer some of the questions whenever this is posted. I cannot promise, lekin I will try my best. Wish you all the best. Take care then. Okay.